Hello students, welcome back to our channel. Today we'll be doing organization of production. So basically we were doing chapter number 1 of economics book, in which we learned these following things which are written here. So Palampur is a well connected village. Rajganj is a big village which is near Palampur. Okay, and it is 3 kilometers away from Palampur. Now all the weather roads from Rajganj connect it to a small village called as Shahapur. Okay, so now the basic transport for people here is bullock carts, tongas, bogies, loaded with jaggery and commodities. And the commodities used are motor vehicles like motorcycles, jeep, tractors and trucks. About 50 families live in Palampur. 80 families are upper caste families, and 1/3 of them are Dalits. So I hope this one is clear to you. So now let's move on to the next topic, which is organization of production. So here we'll be learning the requirements. Now what is production? We need to produce. The aim of the production is to meet our wants, our needs, to meet the needs of our needs. So the four requirements for goods, the production of goods and services are firstly labor. Firstly land. अगर आपके पास land ही नहीं होगी तो how would you do the cultivation and all? Okay, so the first requirement here is land. Now and other natural resources like water, forest, minerals. Okay, the second requirement is labor, i.e. people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other require workers who can do manual work. Each work is providing the labor necessary for production. तो जो सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोडक्शन की, वो होती है लेबर. अब लेबर क्या होता है? अब लेबर वो लोग हैं जो कि वर्क करते हैं. अब कुछ लोग हमें मैनुअल वर्क यानी कि ना स्टार्टिंग वर्क के लिए भी चाहिए होंगे, और हमें कुछ एजुकेटेड वर्कर्स भी, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स भी चाहिए होंगे जो नेसेसरी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऐसे काम जिसके लिए स्टडीज़ रिक्वायर्ड है वो भी चाहिए हमें. यानी हमें दो टाइप्स की वर्कर चाहिए, जो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स हैं वो भी, और जो मैनुअल वर्क करे वो वाले वर्कर्स भी. नाउ द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, यानी कि जो इनपुट्स हम लोग हर एक स्टेज पे डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज दी फिजिकल कैपिटल. अब फिजिकल कैपिटल भी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. तो फिजिकल जो कैपिटल है, आई वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड टू इन एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. जो हम इनपुट्स डालते हैं दे आर कॉल्ड एज द फिजिकल कैपिटल. अब जो है फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? जो नेम इटसेल्फ सजेस्ट फिक्स्ड है. वर्ड क्या है? फिक्स्ड, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि फिक्स्ड है, जो कि हटेगी नहीं, टेम्प्रेरी नहीं है, मतलब परमानेंट है. परमानेंट भी नहीं है पर बहुत साल, जैसे कि टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स है. अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रैक्टर ख़रीदते हैं जो कि महंगा आता है बहुत ज़्यादा, तो वो जो ट्रैक्टर है वो आप एक क्रॉप उगाने के बाद वापस ट्रैक्टर ख़रीदेंगे. रोड का एग्जांपल लेते हैं. आपने एक रोड बनाई है ना, वो रोड आपने बनाई, आपको ट्रैक्टर लगा, तो ट्रैक्टर जो है आपने अब अगली रोड बनानी है तो क्या नया ट्रैक्टर खरीदेंगे? वैसे इतनी 1,000 रोड्स बनती है तो उनके लिए 1,000 ट्रैक्टर खरीदेंगे, ऐसे तो जो है बजट बिगड़ जाएगा. वैसे ही जो फिजिकल कैपिटल जो होती है, ऐसी चीज़ें जो कि आपकी फिक्स्ड कैपिटल वो होती है फिजिकल कैपिटल के अंदर, जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको हेल्प करे. So tools and machines range from very simple tools such as farmer's plow to sophisticated machines such as generator, turbines, computers, etc. Tool machines building can be used in production over many years and hence are called as fixed capital. So tools, machines and buildings, from simple to complicated and advanced and sophisticated tools, these all are called as fixed capital. Now I'm talking about raw materials. Raw materials and money in hand. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter, and also some money is always required during the production to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called as working capital. Unlike tools, machines and buildings, they are used up in production. अब for an example, आपने रोड बनाई तो उसने हमने पैसे दिए. अब वो पैसे दिया, अब नेक्स्ट रोड बनाओगे तो वही जो सेम पैसे, जैसे ट्रैक्टर था वो तो हमने सेम यूज़ कर लिया, पर वही जो पैसे हैं वो आप वापस नहीं यूज़ कर सकते. आपको वापस जो है न्यू, अगर आपने सपोज 1 करोड़ रुपए दिए, 1 करोड़ की नहीं बनती, बट फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपए पहले रोड के लिए दिए, है ना,
तो दूसरी रोड के लिए आप क्या वही जो आपने 1 करोड़ दिए, जैसे हम लोग वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे हम लोग वही मनी नहीं यूज़ कर सकते। जो उसमें रॉ मटेरियल्स लगे हैं, जो उसे बनाने के लिए लगे हैं, वो हमें अब नए ख़रीद के लाने पड़ेंगे। तो वैसे ही जो रॉ मटेरियल और मनी होता है वो होती है मनी इन हैंड, वर्किंग कैपिटल होती है, क्योंकि ये एक टाइम के काम के लिए ही आती हैं। टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म है, एंड ये है आपके लिए टेम्प्रेरी। Now the fourth requirement is very important one, knowledge and enterprise। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें जो है वो प्रोड्यूस कैसे करनी है चीज़ें, तो हम लोग कैसे इन सब लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और जो है हमारी वर्किंग कैपिटल, इन सब का काम ही क्या हुआ जब हमें पता ही नहीं कि हम लोग बीज कैसे बोए, कैसे उससे प्लांट बनता है, हमें ये चीज़ें पता ही नहीं। वी डोंट नो हाउ टू सो सीड्स, हाउ वी डू फार्मिंग, देन हाउ वुड बी एबल टू प्रोड्यूस समथिंग। हमें प्रोडक्शन तो आता ही नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। सो एंटरप्राइज, नॉलेज एंड एंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। एबल टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. These things is called human capital। अब ये जो है, ये जो सारी थिंग्स हैं, ये क्या कही जाती है, ह्यूमन कैपिटल। ये सारी थिंग्स क्या कहते हैं हम लोग इन्हें, ह्यूमन कैपिटल। We shall learn more about human capital in the next chapter. In the picture, identify the land, labor and fixed capital using in the production। अब ये हमारे को एक पिक्चर दी हुई है, लेट्स आइडेंटिफाई। सो यहाँ के ऊपर हमारा लेबर क्या है, ये लोग हमारा क्या है, लेबर। नाउ ये इनके क्या है, रॉ मटेरियल्स, तो ये क्या हो गई, फिज़िकल कैपिटल। अब इनका जो दिमाग है, फिज़िकल कैपिटल हो गई, है ना। अब ये जिस एरिया में वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है उन्हें रिसोर्सेज चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। अब फिज़िकल कैपिटल में इनके पास वर्किंग कैपिटल भी है और फिक्स्ड कैपिटल भी है। अब ये जो है, जिनकी नॉलेज है जो उसमें यूज़ हो रही, नॉलेज एंड एंटरप्राइज जो है, दैट इज़ द ह्यूमन कैपिटल। सो आई होप आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हो चुके हैं। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. Now what are the factors of production? This is one of the most asked questions, कि what are the factors of production? So production which is organized by combining land, labor, physical capital and human capital is called as the factors of production. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. Now हम लोग अब देखेंगे farming in Palampur in our next video. Hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.